Today we will be understanding meaning and characteristics of human source management, which is also popularly known as HRM. In order to understand the meaning and characteristics of ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, हमें एक इसकी बैकग्राउंड जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वाई दिस एक्चुअल टर्म हैज़ बीन यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो दे आर मेड अप ऑफ पीपल. सो टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मनी, मटेरियल और मशीनरी, इनको जो है यूटिलाइज किया जाता है थ्रू पीपल. And therefore जो people हैं they are the most significant resource of the organization. So that is why people is being considered as a resource. And without utilizing these resources, organization will not be able to channelize its machinery, its material or its money. So in order to actually have a fuller or optimum utilization of all these resources, the key resources which is called as people, जिनको जो है employees के नाम से जाना जाता है, are really really important to understand for the organizational perspective. तो ये है एक छोटा सा बैकग्राउंड, और इसकी डिटेल में बैकग्राउंड जानने के लिए आप मेरा एक इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. There are some super important fact about human resource management, but in order to understand human resource management, first let us understand the human plus resources. So HR जो है, जो की टर्म है जिनको समझ लेते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है human plus resources. So human जो है, जो अभी हमने बात की, people जो या employees जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एंड resources क्या है? resources हैं knowledge, skills and ability of the employees, those who are working in an organization. जैसे कि नॉलेज की बात करेंगे तो लोगों के या एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस. स्किल्स की जब बात करेंगे तो मे बी लीडरशिप स्किल्स, क्रिएटिविटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एबिलिटीज़ की जब बात करेंगे तो इट विल बी कैटेगराइज इनटू टू थिंग्स, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड फिजिकल एबिलिटीज़. राइट. सो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वी टॉक अबाउट द ह्यूमन सोर्सेज, सो दीज आर ओनली ब्रॉडर थ्री कैटेगरीज. नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आर द की वन जिनके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को एनालाइज किया जाता है. इसलिए ह्यूमन सोर्सेज मे बी डिफाइंड एज एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़. सो व्हेन दीज टू कंबाइंस टुगेदर, कि एम्प्लॉयज़ के जो भी ये आस्क कॉन्सेप्ट है, एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज, जब इन दोनों को इकट्ठा समझा जाता है, देन इट विल बी ए पार्ट ऑफ HR. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे हमने अभी बात करी ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें लोगों के एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज. सो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस and interaction with the environment. There are somehow, which is also popularly known as, human resources are heterogeneous. Heterogeneous would mean that there are so many people working in an organization, maybe employee A, employee B. And when we talk about employee A and employee B, and one situation is given to them, so A might have a different attitude to that particular situation, and we would have a different attitude toward that particular situation. Maybe if you will including the C would have also different way to do the things. So in that way, एक ही काम को करने के लिए जब लोगों के different perspective या attitude होते हैं, तो उनको जो है heterogeneous कहा जाता था. इसलिए human resources are, जो ability, skill and knowledge है हर किसी का, heterogeneous होता है. Third one is human resources are dynamic and behave differently. जैसे कि अभी मैंने बात करी कि सिचुएशन की बात करी, इफ़ अगर कोई सिचुएशन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई राइट होता है, तो हो सकता है A might have a different approach to handle that particular situation, B की अलग है, C की अलग हो सकती है. तो इसलिए क्या है, ये हर इंसान जो है अलग तरीके से बिहेव करता है. That will be and they react to the same situations in a quite different ways. जैसे कि it is therefore difficult to predict the human behavior when we talk about the evolution of human behavior में भी हमने इसके बात करी है. तो जब भी different situations लोगों को दी जाती है, and then they tend to behave differently in a different situation, is called as dynamic. Essential element of an organization. Human resources को बहुत ही एक essential element consider किया गया है. जैसे कि अभी हमने बात करी material, machinery और money जो है, इनको जो चैनलाइज किया जाता है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है. द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जैसे बात कर रहे हैं कि हम मटेरियल, मैन, मशीनरी
या फिर आप बात करें मनी की, तो डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जिस तरह की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यू वुड एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह की आउटपुट आपके पास आएगी। सो देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज, जैसे समटाइम्स आपने सुना होगा कि इसको रियल एसेट भी कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज को। सो बेस्ड ऑन दैट देयर एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज जो है वो हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द रियल एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। अभी तक जो है हमने HR की बात करी थी, और HR क्या था? HR इज अ knowledge, skill and abilities of a person. Now the management term has also been included here, but it altogether makes a different meaning to it. So there are so many employees working in an organization, and HRM is such a broad term that look after the important affairs of an organization. जैसे कि बात करें कि अगर देखेंगे इसकी definition देखते हैं, human resource management is a process of acquiring, because if you have an organization, if this is your organization and you have started very recently and now you are thinking of to let us have employees in your organization, so first of all ये आप क्या करेंगे, आप एक्वायर करेंगे टैलेंट को, आप एक्वायर करेंगे, आप रिक्रूटमेंट करेंगे, आप सिलेक्शन करेंगे। तो वो the very first process will be part of acquiring, and the moment they have been on board, मान लीजिए एम्प्लॉय ए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया and you are expecting that particular employee to behave according to you or according to your organization need. तो अगर वो, if there is a lack, if there is a gap between the required ask and existing would mean existing ask जो है वो किसका, ए का, अगर इसके बीच में गैप है then the training would be required. जो रिक्वायर्ड आस्क है, एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज जो कंपनी को चाहिए, और जो एम्प्लॉयज के पास एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज है, तो if there is a gap then training is needed. So this is step number 1, this is step number 2, and then appraising क्या है? जब the moment you have assigned a task, अब आपने इस ए एम्प्लॉय को क्या किया, टास्क असाइन किया, the moment task has been assigned, now you will start evaluating the performance of an individual, और उसका पोटेंशियल भी अप्रेज करेंगे, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे, अटेंड करेंगे लेबर रिलेशंस को, हेल्थ एंड सेफ्टी, फेयरनेस कंसर्न्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरी सिंगल टाइम टास्क वुड बी लुक आफ्टर बाय द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, आपके पास एक एम्प्लॉय आया, आपने उसको क्या किया, ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया, आपने कॉम्पनसेशन ऑफर किया, देन आप उनके साथ साथ उनके एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक येट लेजिटिमेट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी एट वर्क प्लेस। जैसे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, लोगों के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को यू स्टार्टेड एनालाइजिंग इट, एंड देन यू आर मेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ देयर अटेंडेंस, लीव्स एटसेट्रा, उनकी सेफ्टी मेजर्स को आप देख रहे हैं, and other evaluation parameters will be part of the human resource management. So that is why in the beginning I said that human resource management is a very very broad yet important aspect of any organization. That is why human resource management ensures the success of any organization if it is being utilized appropriately. अब इनकी characteristics की बात करते हैं कि एक इसको हम कहेंगे comprehensive function है। तो कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये हर तरह के लेवल को ऑर्गेनाइजेशन में कवर करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये हर एक कॉन्सेप्ट में क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन और एक कोहेसिवनेस एस्टेब्लिश करता है, और उसको इंश्योर करता है कि दैट कोहेसिवनेस इज देयर एंड इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड वाइल परफॉर्मिंग टास्क। जैसे कि अब इसमें ये सुपरवाइजर लेवल पे भी अप्लाई होता है, वर्कर्स लेवल्स पे भी होता है, ऑफिसर्स पे भी, मैनेजर्स पे भी। सेकंड इज इट इज़ अ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। वाई डू वी कॉल इट एज ए पीपल ओरिएंटेड अप्रोच? क्योंकि बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ग्रुप्स। जब भी लोग, अब देखिए, जब भी लोग काम करेंगे, या तो इंडिविजुअल काम करेंगे या तो ग्रुप में काम करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये कंसर्न है विद एम्प्लॉयज़ जो इंडिविजुअल भी है और ग्रुप में भी काम करते हैं, एंड इट इज़ द प्रोसेस। ये क्या करता है कि बेस्ट फिट आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल का विद जॉब, बिकॉज क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या एक एम्प्लॉय में स्किल्स हैं, उनका बेस्ट मैच को इंश्योर करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। So therefore it is also called as, it is a process of bringing people and organization together so that organizational goal can be achieved
with the help of the employees. Third is action oriented. Definitely it takes action, and rather than making a record and procedure etc, because this human resource management stresses upon the solution of human resource problems. जैसे कि प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, मे बी फेयरनेस, मे बी द प्रमोशंस पैरामीटर्स, मे बी द बोनसेस, देयर कैन बी एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में. सो उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है, उनको रिजॉल्व करता है एंड ट्राई टू देन उनको रिजॉल्व करने के बाद इंश्योर करता है कि हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अलाइन किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के साथ, सो दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. थर्ड इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड. सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट जब एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पे जब अगर गैप रहता है एक रिक्वायर्ड स्किल एबिलिटीज़ में एंड एग्जिस्टिंग स्किल एबिलिटीज़ में, देन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड. सो द training will also be looked after by the human resource management. That is what is being considered as the key characteristics of human resource management, and they try to get the maximum out of the employees. That is why this look after the all such things. Maintaining cordial relations. So whenever there is a conflict, because it is also believed that actual behavior कहता है कि जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं, they would have a different attitude, different capabilities हैं, different perspective है, different personalities हैं. So there is a chances of having a conflict among them. So conflict of thought हो सकता है, conflict of maybe role हो सकता है, there it can be anything. So HRM क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि कोर्डियल रिलेशनशिप्स रहें एम्प्लॉयज़ के बीच में, सो दैट विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जाए विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.